ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड चैप्टर का। और वो टॉपिक है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स जिसको इम्परफेक्शन भी बोला जाता है। इम्परफेक्शन। defects, what do you mean by defects? It is irregularities in arrangement of constituent particle, constituent TUENT, constituent particles in a crystal lattice. Defect, that is also called imperfection. Irregularities in arrangement of constituent particles in a crystal lattice is called defect or imperfection. हमारे बुक के अंदर पॉइंट डिफेक्ट दिया हुआ है। तो क्रिस्टल के अंदर जो पॉइंट डिफेक्ट है वो 3 प्रकार का होता है। पॉइंट डिफेक्ट in a crystal is of 3 types. Number 1, stoichiometric defect. Stoichiometric defect. Number 2, non-stoichiometric defect. Number 3, impurity defect. Impurity defect. Further, stoichiometric defect is of 4 types. One is vacancy defect. Second is interstitial defect. And third is Schottky defect, SCHOTTKY, Schottky defect. And fourth one is Frankel defect. Non-stoichiometric defect is also of 2 types. Metal excess defect number 2, metal deficiency defect. Metal deficiency defect. Impurity defect is also 2 types. Impurity defect is also 2 types. Number 1, by adding impurities of other salt. By adding impurities of other salt. Third,
atoms of non-metal of smaller size by adding atoms of non-metals of lower size, of lower atomic size, of lower atomic size. Once again, draw your attention here. Point defect, that is defect in crystal. Point defect is of three types: stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and impurity defect. Stoichiometric defect is of four types: vacancy defect, interstitial defect, Schottky defect, and Frankel defect. Non-stoichiometric defect is also two types: metal excess defect, metal deficiency defect. Impurity defect is also two types. It can be caused by adding impurities of other salt. It can be caused also by adding atoms of non-metals of lower atomic size. Now we will discuss these defects one by one. First of all, we will take stoichiometric defect. Stoichiometric defect in non-ionic solid. It is of two types. Number one, vacancy defect. वैकेंसी डिफेक्ट, इसको समझने की कोशिश करेगा बेटे. वैकेंसी डिफेक्ट, सच डिफेक्ट इज noticed. Vacancy defect, such defect is noticed when some atom miss their lattice site in the crystal lattice. Some atoms miss their lattice site in the crystal lattice. Look here. देखिए बेटे, यहां पर जो एटम था वो यहां से जो है मिस हो चुका है. यहां पर जो एटम था वो जो है यहां पर जो है मिस हो चुका है. वंस अगेन इसको दोबारा से देखिए बेटे, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा. देखिए, एक एटम यहां से मिस है, एक एटम यहां से मिस है. तो इसको ऐसे जो है समझने की कोशिश करेंगे बेटे. यहां पर जो है वैकेंसीज, VACANCIES, वैकेंसीज आर क्रिएटेड. देखिएगा, डिफेक्ट हो गया क्योंकि जिस क्रिस्टल के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगा एटम का, जिस क्रिस्टल के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगा एटम का, वहां पर कोई डिफेक्ट नहीं होता. अब देखिए, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है. यहाँ से एटम जो है मिस है, यहाँ से एटम मिस है. इसका मतलब यहाँ पर जो है वैकेंसी आर क्रिएटेड. तो सच डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट कैसे हो सकता है? जब हम जो है सॉलिड को, जब हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड को हीट करते हैं, किसी सॉलिड नॉन आयनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं. तो उस समय ये इफेक्ट हो सकता है. उस समय क्या होगा कि कुछ एटम जो है अपनी पोजीशन को जो है मिस कर जाएंगे और वहां पर जो है क्या पैदा हो जाएगी,
वहां पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, या जिसको आप वैकेंसी कह सकते हो, जिसको आप होल भी कह सकते हो। तो इस तरह का ये डिफेक्ट जो होता है वो वैकेंसी डिफेक्ट होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट वॉल्यूम आर डिक्रीजिंग, यहाँ पर देखिए एक एटम ये चला गया, एक एटम यहाँ से चला गया, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम जो है क्या हो गया, कम हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज as the number of atoms per unit volume decrease। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे नोट करने के लिए कि वैकेंसी डिफेक्ट के कारण जो क्रिस्टल होता है वहां पर उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। अंडरस्टैंड नाउ सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बेटे? इसमें क्या होगा, कुछ एटम जो है इंटरस्टिशियल साइट में अपनी पोजीशन ऑक्युपाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपनी पोजीशन ऑक्युपाई कर लेंगे। कैसे? लुक हियर, ये आपका नॉन आयनिक सॉलिड है, अब देखिए अगर यहां पर एक एटम यहां पर आ जाए, एक एटम यहां पर आ जाए, तो ये जो एटम है एटम्स इन इंटरस्टिशियल साइट। देखिए interstitial defect, such defect is noticed when some of the atoms occupy interstitial sites of the crystal lattice। अब देखिए ये एटम और ये एटम कहां पर आ गए हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स में आ गए हैं। इसलिए इस तरह का जो डिफेक्ट है इसको हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। इस डिफेक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर डेंसिटी जो है क्या होती है? इंक्रीज होती है। डेंसिटी इंक्रीज as the number of atoms per unit volume increase। आप देख रहे होंगे बेटे यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम जो है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसकी डेंसिटी जो है ऐसे आयनिक सॉलिड की डेंसिटी जो है वो क्या, सॉरी ऐसे नॉन आयनिक सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। तो वैकेंसी डिफेक्ट के कारण डेंसिटी डिक्रीज होती है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। नाउ स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट हमारा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इन आयोनिक सॉलिड। ओके, नंबर 1 स्कोट की डिफेक्ट। स्कोट की डिफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको समझो बेटे, बहुत अच्छी तरह समझना है आपको, ये पेपर में बहुत दफा आता है। पेपर में देखिएगा स्कोट की डिफेक्ट। सच डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट कब होता है?
Such defect is noticed when some of the ion miss their lattice site. Some of the ion miss their lattice site in the crystal lattice. मान लो क्रिस्टल लैटिस है, उसमें कुछ आयन जो है अपनी पोजीशन जो है मिस कर जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे. हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल द मिसिंग कैटायन एनायन शुड बी सेम. जितने कैटायन मिस होंगे उतने एनायन मिस होंगे, जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन मिस होंगे. देखिएगा, समझने की कोशिश करें बेटे इसको. ये मैं आपका एक A positive, B negative, A positive, B negative, A positive, देखिए बेटा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. यहाँ पर जो आपका बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव. दिस इज आयनिक सॉलिड. ये क्या है आपका? एक आयनिक सॉलिड है. अगर इसमें से एक कैटायन अपनी जगह से हट जाए, एक कैटायन अपनी जगह से हट जाए, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है इम्बैलेंस हो गई है. चार्ज प्लस और माइनस चार्ज वाला जो वो इम्बैलेंस हो गया. इसलिए जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन मिस होंगे. तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा उसको हम स्कॉट की डिफेक्ट कहेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. सच डिफेक्ट is noticed when some of the ion miss their lattice site. कुछ आयन अपने लैटिस साइट को मिस कर जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे. हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द मिसिंग कैटायन एंड एनायन शुड बी सिमिलर. जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन मिस होंगे. अब देखिएगा, यहां पर कैटायन मिस हुआ, यहाँ पर तो एक एनायन मिस यहाँ से. इसका मतलब नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट्स आर सिमिलर. तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉट की डिफेक्ट. इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? स्कॉट की डिफेक्ट कहेंगे. तो स्कॉट की डिफेक्ट के कारण क्या क्या हुआ और ये कहाँ होता है, ये हमें पता लगाना बेटे. किसके अंदर ये डिफेक्ट पाया जाता है, ये चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ. स्कॉट की डिफेक्ट इट इज noticed in such ionic solid which have high coordination number. कोऑर्डिनेशन, CN का मतलब है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर. हाई यानी कि ऐसा आयनिक सॉलिड जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी, वहां पर जो है स्कॉट की डिफेक्ट क्या होगा, वहां पर जो है स्कॉट की डिफेक्ट पाया जाएगा. अंडरस्टैंड. दूसरा, which have smaller difference in the size of cation and anion. देखो, ये दोनों कंडीशन होनी बहुत जरूरी बेटे. स्कॉट की डिफेक्ट कब होगा? जब
ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। दूसरा, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसा आयनिक सॉलिड जिसके अंदर जो है कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम हो, कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस कम हो, तो वहां पर जो स्कोट की डिफेक्ट मिलेगा। अंडरस्टैंड नाउ। अब ड्यू टू दिस डिफेक्ट क्या होगा बेटे, ड्यू टू दिस डिफेक्ट, अब इस डिफेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, इस डिफेक्ट के कारण क्या क्या हो सकता है, देखिए यहां पर होल्स आर क्रिएटेड, तो डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है। जो आपका आयनिक सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्यों हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है डिक्रीज भाई, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ होल्स, क्योंकि स्कोट की डिफेक्ट के कारण जो होल्स बन गए हैं, ठीक है, उन होल्स के कारण जो है आयनिक सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है। दूसरा और क्या हो सकता है बेटे, बोलो सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी वो भी कम हो जाती है। अब ये कहां पाया जाता है बेटे, इसका एग्जाम्पल कहां है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, हैलाइड ऑफ, हैलाइड ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, alkali earth metal such as sodium chloride, potassium chloride, cesium chloride, etc. Stoichiometric defect in ionic solid. Number one, Scott defect. Scott defect is noticed when some of the ion miss their lattice side, and in order to maintain the electrical neutrality, the missing cation and anion should be similar. Such defect is noticed in such ionic compound which have high coordination number, second which have smaller difference in the size of the cation and anion. इस डिफेक्ट के कारण क्या क्या हो सकता है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज, और डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीज। अब ये डिफेक्ट, इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हैलाइड ऑफ एल्कली अर्थ मेटल सच एज NaCl, KCl, cesium chloride, etc. Now come to the second defect of ionic solid, फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, FRANKEL, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, such defect is noticed when some cation are missing their lattice side. Such defect, what defect? Frenkel defect. Such defect is noticed when some cations are missing from the lattice side and they occupy position elsewhere in the crystal lattice. देखिएगा, सपोज करो ये यहां से निकल गया बेटे, ये कैटायन यहां से मिस हो गया, वो कैटायन जो है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कहीं पर भी जाके, सपोज करो वो यहां पर आ गया, उसने अपनी पोजीशन यहां पर जो है ऑक्युपाई कर ली है, तो इस तरह का डिफेक्ट जो है फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। हाँ, इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिसलोकेशन
कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैटायन है वो अपनी जगह छोड़ देता है, ठीक है, और वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर कहीं पर भी जाके जो है मोस्टली जो है नाइबरिंग जो है इंटरस्टेशियल साइट के अंदर जो है प्रोड्यूस कर जाता है। उसने अपनी पोजीशन यहाँ पर उसने ग्रहण कर ली है। दोबारा फिर सुनिए बेटे, वंस अगेन लिसन। फ्रैंकल डिफेक्ट इज नोटिस्ड इन सच क्रिस्टल लैटिस वेयर the some cation are missing from their lattice site and they occupy position elsewhere in the crystal lattice। तो ये जो आपका है, ये जो आपका डिफेक्ट था, इसको हम क्या कहते हैं? डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब ये डिफेक्ट पाया जाता कहाँ पर है और इसके कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? नंबर 1, such defect is noticed in ionic solid, कैसे आयनिक सॉलिड के अंदर ये है फ्रैंकल डिफेक्ट होता है बेटे? नंबर 1, which have low coordination number। CM is coordination number, यानी कि ऐसा आयनिक सॉलिड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है उसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। सेकंड, which have larger difference between cation and anion। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट और यू कैन से फ्रैंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है? ऐसा डिफेक्ट ऐसे आयनिक सॉलिड के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर जो है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है और जहां पर जो है कैटायन और एनायन के साइज का जो डिफरेंस है वहां पर ज्यादा होता है। वहां पर कैटायन बहुत छोटा होता है और एनायन जो है बहुत बड़ा होता है। कैटायन इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द एनायन। तो ऐसे आयनिक सॉलिड के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। अब ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट व्हाट हैपन? ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट क्या क्या होता है? नंबर 1, लुक हियर, डेंसिटी रिमेन सेम, यहां पर जो है जो क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड है उसकी डेंसिटी सेम रहती है। सेकंड, स्टेबिलिटी डिक्रीज एज द होल्स आर क्रिएटेड। यहां भी होल क्रिएट हुए तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। अब ये कहां होता है, किसके अंदर पाया जाता है? इसके एग्जाम्पल क्या है? हैलाइड ऑफ सिल्वर, एग्जाम्पल है इसके हैलाइड ऑफ सिल्वर, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड के अंदर भी ये फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इसका एग्जाम्पल क्या है? हैलाइड ऑफ सिल्वर, फॉर एग्जाम्पल AgCl, AgBr, और beside these two zinc sulfide is also example of फ्रैंकल डिफेक्ट। नाउ आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टोइचियोमेट्रिक
non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect is also of two types. Number one, metal excess. Metal excess defect. अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इट इज क्रिएटेड बाय इन टू वे. It can be created in two way. Metal excess defect can be created in two way. Number one, A, by anionic vacancy. By anionic vacancy. Look here. मैं इसका डायग्राम बना देता हूं. A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव. देखिए भाई, दिस इज ionic solid, crystalline solid, or you can say crystalline solid. By ionic vacancy, metal excess defect. This defect is noticed when some anion miss their lattice site. ये रही आपका anion, इसने अपनी पोजीशन से है मिस कर दी. देखिए, अब यहां से एनायन मिस हो गया है, तो एनायन मिस हो गया है तो चार्ज इम्बैलेंस हो गया है. जब चार्ज इम्बैलेंस हो गया है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है